I think from the beginning, this Aditya, धनश्री एंड अरबाज का जो कनेक्शन था वो किसी हद तक फेक था. अगर उसमें भी हाईलाइट करो तो धनश्री और अरबाज का. यार एक तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा कि जब कोई शो देख रहा है तो भी वो आप एक ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो हाथापाई पे आ जाए. 5 लड़कियां हैं यार. हम एक बंदे को हटा रहे थे और आरुष को मैं पकड़ी हुई थी एक कोने में कि मत जा. हाँ यार, मैं भी ऐसे फैमिली से, मतलब मेरी भी परवरिश जो हुई है एक फैमिली में ऐसे हुई है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते. I secretly want Nayandeep and Arush to be in the winning of the title. हाय, मेरा नाम है कुब्रा सेठ और आप मुझे देख रहे हैं ऑन इंडिया फोरम. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अलग सेलिब्रिटी से भी उनकी बातें सुन सकते हैं. तो प्लीज सब्सक्राइब एंड एंजॉय द शो. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हूँ भाई इंस्टाग्राम पे, आ जाओ फॉलो कर लो, बातें करते हैं वहां पे. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair, and today we have with us someone who played gracefully, who had one of the graceful exit from the reality show The Rise and Fall. Of course, we'll talk about the show, her journey, her experiences, and everything right here on India Forum. Please welcome Kubra Seth on India Forums. Hi! Hi! What's up? Thank you, Aishwarya, for having me, and thank you for that lovely introduction, and thank you for noticing that my exit was a graceful exit. Yeah. First of all, I have to ask you, how's life after coming out of that mad house? It is amazing. Yeah. And also my life in that house was not too bad. Yeah. Right? Like it was not too bad. I think being a ruler or being of a certain stature is really in your mind. And जिस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हो वो दुनिया आपके लिए वैसी ही रहेगी. तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ की दुनिया बहुत खराब थी. वहाँ पे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको उस साइड में जाना पड़ता है जहाँ पे आपको नहीं लगता कि आपको जाना है. मुझे नहीं जाना था उस साइड. तो ये तो मेरे कंट्रोल में है ना. मुझे हर चीज शो के लिए नहीं करनी है. मुझे कुछ चीजें अपने लिए भी करनी थी. मगर वहां से बाहर निकलने के बाद एक चीज कह सकती हूँ कि जो ये दुनिया है ना, लाइफ, it is beautiful. Like to be able to touch your cats and to trouble them and to hold them and to touch people you love and hug them and hold them and eat whatever you want whenever you want. Matlab you don't have to like ask for something and wait. You can ask for something and it will be there in like what, 20 minutes. So I think it's like a pretty great space. I'm able to enjoy life a lot more. I remember this emotional moment of yours when you saw Upma and you said that you almost, always ran away from eating it. Yes. उस टाइम पे क्या महसूस हुआ? लाइफ में क्या सिखाया आपको? Listen, you've eaten Upma as well. Okay, you are Nair. You have eaten Upma. You know how it is. Do you like Upma? Not much. Nobody likes Upma, man. It is true. Nobody likes Upma. तो जब it's an easy dish to make, right? रवा is so easy to cook. तो मम्मा सुबह में रवा जल्दी जल्दी में बनाती थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था. उसी दिन मेरी स्कूल की बस आ जाएगी, स्पोर्ट्स डे है, मेरा ये स्पीच है स्कूल में, मैं भाग जाती थी. मुझे उपमा नहीं खाना था. तो इनफैक्ट मेरे पूरे फैमिली को नहीं खाना था. तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उपमा, राइट? लाइक मुझे नहीं खाना है उपमा, आप मेरे को नहीं खिला सकते उपमा. और पहला ब्रेकफास्ट उपमा. आप कैसे तोड़ सकते हो कि इंसान को ऐसे? मतलब ये इतना सिंपल था मेरे लिए, मगर यही सबसे बड़ा धक्का था मेरे लिए कि मेरे को उपमा खाना पड़ा. हाँ यार, उपमा was very traumatic. It was traumatic. But after coming out of the house, what's the first thing you ate? I ate a burger. Wow. A big burger, and I asked for a full side of fries, and I ate every single fry. And then I asked for lots of sweets. So I've had, in the last 5 days that I've been back, I've eaten like 2 tubs of ice cream, 2 full big tubs of ice cream. It's about 1 kilo of ice cream. I've had many packets of churros with chocolate sauce. Sweet. I have just wanted to eat since I've been back, and I'm not recommending this
as a compressed diet for anyone, but I know how much I needed that sugar in my body, how much I needed like just that fried food. I wanted some junk, Yeah, and then it's so good just to eat garam khana on your plates. I agree. मुझे बहुत like, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है like ये खाना सोच के you know like तो Yeah. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है to be back in life and to be able to enjoy the little things in life जो आपको अपनी जिंदगी में ना ऐसा नॉर्मल लगता है, Yeah, I agree. मगर वो चीजें जब आपसे छीन ली जाती हैं और फिर वापस आपको वो सब चीजें मिल जाती हैं तब आपको रियलाइज होता है कि आप एक्चुअली कितने ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में. I agree. तो मेरे लिए ये बहुत ग्रेटफुल एक्सपीरियंस था. Yeah, Gurda, you got to live in both the basement and the penthouse. If I had to ask you which one you secretly want to live in and which one you secretly love living in? You know, I am very comfortable in basics. अच्छा, basement. मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ हाँ. अपने बेसिक्स के साथ. और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने नोटिस की. जब आप राइज एंड फॉल के जो लोगोस है ना, जब आप उसको देखते हो तो एक तो है राइज Yes. जो है हाँ. ऐसा वाला गोल्ड और फिर दूसरा है सिल्वर, राइट, जो नीचे पॉइंट आउट करता है. मगर आप जब उस लोगो को देखते हो क्लियरली तो आपको दिखता है कि जो ऊपर वाला लोगो है ना वहां पे बटे हुए पीसेस है, Oh. और जो आप नीचे देखते हो राइज वाला तो सब साथ में, I agree. राइट. And which is, you know, stood out also, It's- the love in the basement. इट ऑलवेज वाज देयर. जब आपके Yeah. पास कुछ नहीं होता है ना तब आप एक दूसरे के साथ होते हो, जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप एक दूसरे के खिलाफ होते हो. तो मुझे लगता है कि मैं जहां पे भी हूँ अगर मैं उस माइंडसेट के साथ हूँ कि मुझे सबको साथ में जोड़ के रखना है, जो मैंने किया इवन इन द पेंट हाउस, आई थिंक दैट वाज अ गुड गेम टू प्ले. Yeah. इसका मतलब ये जरूर है कि मैं आगे तक नहीं गई और मैं इस शो को जीत के नहीं आई, बट मैं अपने लिए तो जीती हूँ ना एज अ पर्सन. Yeah. मैंने अपने आप को दोगला नहीं किया बेस्ड ऑन मी एज अ रूलर एंड देन मी एज अ वर्कर. बहुत लोगों ने शायद मुझे बोलने की भी कोशिश की कि ऐसे हो तो ऐसे ही होना चाहिए. मैं सुन लेती थी मगर मैं वो करने वाली नहीं थी, Yeah. बिकॉज जब लोगों की आवाज उठती है ना तो सब साथ में वो आवाज उठती नहीं है, उसकी गूंज भी आती है वापस से. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि ऐसे प्लेयर्स थे जैसे कि अरबाज जिनको नीचे लेके आना जरूरी था, मगर हम उनको पहले भी लेके आ सकते थे. Yeah. हमने पहले नहीं लाया उनको नीचे, राइट. जब मौके मिले हमने सोचा कि हम साथ में खेलेंगे. मैंने ऐसी कोई गेम नहीं खेली. Right. मुझे पता था कि उनको नीचे लाना है, उनको नीचे लाना है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी कहानी हमको सुनाई नहीं दी और उनकी जो स्टोरी थी, उनका जो बिहेवियर था वो तो सबके सामने था. तो उसके बाद उसको नजरअंदाज करना और कहना कि नहीं वो अच्छे हैं और उनको ऊपर रहना है, वो अलायंस की गेम मैं नहीं खेल पा रही थी. तो मुझे ऐसा गेम खेलना ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में क्या होता है ना, कई बार जब आपको कोई पसंद नहीं आता है तो आप उठ के चले जाते हो यार. इस गेम में आप कहीं जा ही नहीं जा सकते, ही नहीं सकते. आप वहीं पे हो, आपको उन्हीं के साथ रहना है. तो जितना कम आप अपने ऊपर लोड ले सकते हो ना उतना कम लोड लो, Yeah. उतना कम प्रेशर लो, क्योंकि ये गेम ही आपको प्रेशर में डालेगी. अगर आप कितना प्रेशर लेना चाहते हो उस चीज का, ये भी आपके ऊपर निर्भर है. तो आई थिंक मुझे लाइफ की बहुत सीख मिली इस शो में. Yeah, I also agree to you that, you know, that one thing that stood out was a love in the basement. No matter what, कौन ऊपर जा रहा है, कि हम अभी भी बेसमेंट में है, लेकिन सब लोग एक साथ मिलजुल के सेलिब्रेट कर रहे थे for that person's, you know, rise. If I have to ask you what you know, what you have to say on the bond you built downstairs. आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट बॉन्ड. जब लोग छूट जाते हैं तो जब उनकी पर्सनैलिटीज चेंज हुई तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा. बट जितने लोग जैसे कि आरुष है, बाली है, कीकू जी है, आकृति, मैं, अनाया, हम सब कई समय तक एक दूसरे के साथ थे. तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों से तो मैं जरूर मिलूंगी बाहर. ये जब शो खत्म भी हो जाएगा तब भी मिलेंगे जरूर, क्योंकि जब आपको पता है एक चैलेंज करने के बाद आपकी बॉडी टूट जाती है. वो चैलेंजेस दिखने में मजेदार थे मगर आपको रेंगना है, आपको कुछ उठाना है, कुछ कूदना है, ठंडे पानी में आके नहाना है, आपकी बॉडी बहुत थक जाती थी. मगर ये सिर्फ एक के साथ नहीं होता था, ये सबके साथ होता था. तो सबको वही फीलिंग महसूस होती थी और हम सब एक दूसरे की मदद करते थे. हॉट बैग्स,
किसी को गर्म पानी, किसी को हाँ। ग्रीन टी, हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे। तो ये शायद जो स्वभाव है, जो नेचर है लोगों का, वो साथ में बेसमेंट में और दिख के आया। जी और मुझे लगता है कि वहां पे इंसानियत बहुत ज्यादा थी इन कंपेयर टू बीइंग इन द पेंट हाउस। या ये हेल्पिंग वाला जो था, आपने जैसे बोला, उससे मुझे एक चीज़ याद आई, यू नो, वन ऑफ द फाइट्स दैट स्टूड आउट वाज अरबाज एंड आरुष, एंड उस वक्त आपका एक प्यारा सा साइड, प्यारा सा बॉन्ड हमें देखने को मिला आरुष की तरफ। वो केयरिंग साइड, आप जैसे डेटॉल लेके आए, यू वर टेंडिंग टू हिज वुंड, यू नो, Yeah. और आप कह रहे थे कि अरबाज गलत है, अरबाज गलत है। उस वक्त क्या फील हुआ, क्या था वो एनवायरनमेंट उस वक्त? यार एक तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा कि जब कोई शो देख रहा है तो भी वो आप एक ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो हाथापाई पे आ जाए। मुझे लगता है कि आपके वर्ड्स पे होता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता, मगर आपके हाथों पे आपका कंट्रोल नहीं है। आई थिंक ये बात तो निकी ने भी उसको समझाई कि आप हाथ ऐसे करके बात मत करो, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को अपनी फिजिकल बॉडी पे तो कंट्रोल होना चाहिए ना किसी चीज के लिए। ठीक है, आप मेंटली थके हुए हो, हारे हुए हो, फिर भी आप किसी और पे तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। आपको पहले अपने ऊपर चेक करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये मैं कहाँ से लेके आई हूँ कि मुझे इस बात का इतना दुख हो रहा है। तो मुझे हमेशा लगा कि मैं अपने आप को एक मिरर के थ्रू देख रही हूँ हमेशा। और पेंट हाउस में ना एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि जब आप मिरर की तरफ देख रहे हो तो उस मिरर के पीछे भी कैमरा लगा है। तो ऐसा लगता था कि आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, मगर सब चीज देखी जा रही है। सबको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट इन दैट सेंस। और मुझे बहुत दुख हुआ कि एक शो में जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 5 लड़कियां यार, हम एक बंदे को हटा रहे थे, अरबाज को। एक्चुअली फिजिकली हम 5 लड़कियां हटा रहे थे उसको, और आरुष को मैं पकड़ी हुई थी एक कोने में कि मत जा। और जब वो चला भी गया बात करने के लिए और वापस आया, तभी भी मेरी आंख में इतनी, इट वाज लाइक माय ओन गेटिंग हर्ट एंड इट वाज नॉट फेयर। क्योंकि आपको शो के थ्रू चैलेंजेस मिलेंगे, मगर शो के थ्रू कोई इंसान आके आपके ऊपर फिजिकल वायलेंस करेगा, वो ठीक नहीं है ना। तो इसी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ उस बात का। और जहाँ पे खड़ा होना था मैं खड़ी हुई थी आरुष के साथ, और जहाँ पे मुझे आकृति के लिए भी खड़ा होना था मैं खड़ी हुई थी वहां पे उसके साथ। और यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कोई नाम गलत बोल दे या मुझे सांप बोल दे, वो भी बोला गया है, राइट। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बोलने से मैं थोड़ी ना बन जाती हूँ। अगर कोई मुझे बोला तुम बुढ़िया हो, मैं बुढ़ी थोड़ी ना बन जाती हूँ, राइट। ऑल ऑफ दिस इज इन योर माइंड यार, टेक दिस इन योर स्ट्राइड। ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है कि आप फेल हो सिंगुलरली। अगर फेल होते हैं ना तो हम सब फेल होते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज आप कभी भूल नहीं सकते कि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं इस सोशल एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो फिर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने खुद के वर्ड की। टेक दैट एंड प्ले इट वेल। ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। जब तक आप अपने एक्शंस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, ये रियलिटी शो है ना, बहुत रियल है लाइफ में। ऑल्सो ना उस एवी में आप इमोशनल होते हुए नजर आए, आप बोलते हुए नजर आए कि ऐसी चीज़ें यू नो हम घर में देखते हैं एंड इट इज़ नॉट इजी टू वॉच ऑल ऑफ दिस थिंग। उस वक्त कुछ फील हुआ आपको? हाँ यार, मैं भी ऐसे फैमिली से, मतलब मेरी भी परवरिश जो हुई है एक फैमिली में ऐसे हुई है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बात चिल्ला चिल्ला की जाती थी। तो चिल्लाना बात होती है, वो एक नॉर्मल है। किसी को मार लग रही है, किसी को चोट लग रही है, तो ये मैंने देखा है। और आप तब उसी की साइड लेते हो जो तब आपको प्रोवाइड कर रहा है या आपके लिए सोच रहा है। मगर अब मैं वहां पे नहीं हूं, अब मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां पे मैं अपने खुद के डिसीजंस ले सकती हूँ। मगर जब आप ये देखते हो ना और फिर भी आप सही का रास्ता चुन सकते हो, वहां पे आपको अपनी ग्रोथ नजर आती है। मगर देखना आसान नहीं होता, बिकॉज ये जो मेमोरीज है ना, ये कहीं दूर छुपी हुई है, मगर जब आपको दिख के आती हैं तो आपको बहुत कुछ रियलाइज होता है। अगर आपने
इस गेम को ऐसे देखा कि ये आपको कुछ सिखा के जाएगा, तो जरूर सिखा के जाएगा। अगर आपको लगा कि भाई ये सब लोग मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे हैं, तो वो भी आपको महसूस ही होगा, सब आपके दिमाग पे चलता है। Yeah. And I have to say you truly are a strong woman. Thank you. As I mentioned earlier intro में भी कि आपका ना exit was appreciated by the audience. The way you know it was called one of the graceful exits, right? If I have to ask you, what was your experience? भले ही 4 हफ्ते, कैसा था experience? You called it fulfilling one, right? It was a very fulfilling one. I'm very grateful for my life after the experiment, after the experience. जब आप किसी चीज में अच्छाई नहीं ढूंढ पाओगे तो वो नहीं मिलेगी। अगर आप ज्यादा दूर तक नहीं ढूंढोगे तो कोयला कोयला ही रहेगा। अगर उसको ठीक तरह से देखोगे तो उसमें डायमंड हीरा भी नजर आएगा। मुझे लगा कि इस शो के दौरान जितनी भी एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, लाइक whether it's eating the upma or whether it was fighting for yourself or whether it was nominating someone, ये मेरे लिए सब एक सीख है लाइफ में। ये समझ के चलना कि कहाँ पे किसके साथ कितना बात करें, टू बी कॉग्निजेंट कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, एंड स्टिल बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर मैं चाहूँ तो बहुत इजी है यार लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना और बोलना कि उनको नहीं पता, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। उन्होंने किया जो उनको सही लगता था, मैंने किया जो मुझे सही लगता है। तो अगर मेरी अच्छाई नजर आई है तो उसमें कुछ तो सही था ना। तो सिंपल बात है। The reason you accepted the show or the reason you said yes to the show, do you think that purpose was fulfilled now that you're Yes. This was a fulfilled purpose. I wanted to go on an adventure. Yeah. And this was a life's adventure. Imagine एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल होता है यार कैमरा लेके वीडियोस रिकॉर्ड करना या बोलना कि ओ दिस इज माय डे टुडे, आओ देखो ये मेरी जिंदगी है। मैं इस जनरेशन से नहीं आई। मेरे लिए लाइफ इज नॉट कंटेंट, द कंटेंट ऑफ लाइफ इज लाइफ। उसका जो सार है ना, वो मेरे लिए लाइफ है, और छोटी छोटी चीजों में वो नजर आता है। तो मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक एडवेंचर था, और इस एडवेंचर के बाहर जब मैं निकली हूं ना, ये मेरे लिए बेस्ट एडवेंचर था। एक ऐसा कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट जहां पे मुझे जितनी अंदर की जो बातें हैं ना वो मेरे सामने नजर आ रही हैं, और ये सब कोई और मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है आपके चेहरे पे जो कभी मिस हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल के बैठ सकती कि मेकर्स ने ये नहीं दिखाया, मेकर्स ने वो नहीं दिखाया। सोचो यार 48 आवर्स ऑफ कंटेंट एंड 15 अदर कंटेस्टेंट्स, एंड लिटरली जब आप वीडियोस के लिए जाते थे, मैं जब जाती थी मैं 1.5 घंटा बोल के आती थी। उसके 10 सेकंड लगते थे। राइट? तो सोचो कितनी मेहनत लगती है ऐसा शो बनाने में। जब आप किसी चीज के पीछे, उसकी सोच के पीछे, या जो बनाने में जो तकलीफ लगती है, अगर आप उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, तो फिर अगर मुझे हर चीज में जिंदा दिली, हर चीज में लाइफ नजर आती है, एंड I appreciate looking at life like that. Yeah. It's not in the big things, it's in the small things. Yeah. And I like the small things. Okay, I have छोटू questions. Please ask. फटाफट खत्म हो जाएगा। किसका बॉन्ड शो में फेक लगता है आपको? I think from the beginning this Aditya, Dhanashri and Arbaz का जो कनेक्शन था, वो किसी हद तक फेक था। अगर उसमें भी हाईलाइट करो तो धनश्री और अरबाज का बहुत ज्यादा, बिकॉज आदित्य तो फिर भी अपनी गेम खेल रहा था, बट धनश्री और अरबाज का काफी डिपेंडेंट सा रिलेशनशिप था इस गेम के दौरान, जो काफी फेक था। बिकॉज मुझे पता था कि जब भी मौका मिलेगा अरबाज धना को गिराएगा, और मजा तो तब आएगा जब धनश्री अरबाज को गिराएगी। मगर वो गिराने वाले थे एक दूसरे को, ये तो डिटर्मिन्ड है। कौन है जिसका रियलिटी अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुआ? आई डोंट नो व्हाई, मगर लोग एक अर्जुन के स्टारडम को लेके, उसकी सीनियरिटी को लेके बहुत उसके साथ बने हुए हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो जब कहते हैं कि वो मुझसे बहुत अलग बात करते थे, वो आहाना से बहुत अलग बात करते थे, वो आकृति से बहुत अलग बात करते थे, और फिर वो बाली, अरबाज, आदित्य से अलग बात करते थे। तो मुझे लगता है कि उनका गेम लोगों ने अभी पहचाना नहीं है, क्योंकि ये एक रियलिटी शो है यार। इसमें सीनियर जूनियर नहीं देखते,
सब इस equal. सब इक्वल है यार, तो ये गेम इक्वली खेलो ना फिर। Yeah. उसमें आप बार बार कह रहे हो कि तुम सीनियर हो मैं सीनियर हूँ, मुझे समझ नहीं आई वो बात। मुझे वो पहले टाइम से भी नहीं समझ में आई और वो एंड तक भी नहीं समझ में आएगी बात, आप ट्राई कर लो। I think वो इंसिडेंट भी था ना जहाँ पे आकृति showed middle finger and it created या इट डिड। आप इतने तो सेंसिटिव नहीं हो ना लाइफ में, आपने भी तो गालियां दी हैं, exactly. तो खुद तो ओनरशिप लो। हाँ यार हो सकता है, इंसान हूं, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, मगर नहीं, इस गेम में तुमने की है, तुम तो भुगतोगे भाई। किसको अभी तक गेम से आउट होना चाहिए था? यार आई थिंक जो मेंटल स्ट्रेस और जिस तरीके से कीकू जी ये गेम खेल रहे हैं, वो क्राउड फेवरेट है, वो बहुत प्यारे हैं, मगर उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा टोल ले रहा है मेरे हिसाब से। उसी वजह से शायद कीकू जी को इस गेम से आउट होना चाहिए। वो बहुत अच्छे, जेन्युइनली, ऐसे नहीं बोलने के लिए बोल रही हूँ, इनफैक्ट वो सबको साथ में लेके चलते हैं। मुझे भी उन्होंने बहुत बार बोला कि फट मत जाना, उन्होंने आकृति को भी समझाया। उनको हमेशा लगता था कि कोई फटेगा, सिचुएशन, मगर वो सिचुएशन ऐसी है और मुझे पता है कि मुझ में कंट्रोल है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा वो मजे से खेल रहे हैं। मगर दूसरा कंटेस्टेंट बाली यार 3 हफ्ते तो नॉमिनेट हो चुका है बैक टू बैक, अब पेंट हाउस पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे कम प्लेयर, मतलब प्लेयर की तरह से खेल रहे हैं, वो बाली है। तो लास्टली, हु डू यू थिंक विल लिफ्ट द ट्रॉफी? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस गेम में कुछ भी हो सकता है, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ अरबाज, नो इफ सॉरी, but I won't be surprised if Arush or Arjun. I secretly want Nayandeep Okay. and Arush Yeah. to be in the winning of the title, because जिस तरीके से गेम खेली जा रही है, मुझे नहीं लगता कि आकृति को काफी चांस मिलेगा ऊपर जाके ये गेम जीतने का। So you're rooting for Arush and Nayandeep. I'm rooting for them. मुझे नहीं पता। हाँ. मगर अर्जुन। Okay, here we come to the end of our interview. It was lovely talking. Thank you, Kiris. Arjun. And मुझे ये कहना है, जब से मैंने आपका वो Instagram reel देखा, you are truly a strong woman, and we will still root for you. Thank you. You played gracefully. Thank you. Is there an award, special award for that? I'll take it. The most graceful contestant. I will take it. Well, thank you so much. Thank you, Aishwarya. Thank you so much. I appreciate you. Thank you.